Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you magnetic quantum number, first year chemistry and chapter 5. So the main points that I will discuss in this article, the first one is why we need third quantum number. Why we need magnetic quantum number. Even we were having the principal quantum number and azimuthal quantum number, then why we need magnetic quantum number? Sorry. So next one is the first in the absence of magnetic field, the one line. When we did not apply the magnetic field, we get one emission line. And when we apply the magnetic field, we get three lines. We will discuss this scenario in this article also. And the more next is y values of P are -1, 0 and +1. And I will also elaborate the subshell S in this regard also. Next one is value for S that I will discuss. But before that, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the Facebook and Instagram page with the same name, Concept of Chemistry, where I upload the complete lectures of FSC Chemistry. You can also join these pages with just searching out Concept of Chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to get reach of these pages with just a one click. So move to the lecture. Magnetic quantum number in the absence. First, I will discuss the magnetic quantum number, R emission spectrum in the absence of magnetic field. Then I will discuss in the presence of magnetic field. And then we will discuss the main article, magnetic quantum number. These things are very important that I think I have to elaborate before you, so that you could have a complete understanding of this article. So here the first question is mentioned that why we need magnetic quantum number. We were having the principal quantum number and azimuthal quantum number, then why we need magnetic quantum number? The reason is that if we think that the electron is only revolving in orbit, अगर हम ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो फिर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी था. लेकिन जब उसको हाई रिजॉल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से चेक किया गया, वो लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड थी. मतलब कि शेल अकेला या ऑर्बिट अकेला नहीं था, उसके सब शेल या ऑर्बिटल्स थे. तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफ नहीं रहा था. फिर हम एजिमुथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया. फिर क्या हुआ, फिर जब उन ऑर्बिटल्स को मोर हाई रिजॉल्विंग पावर से या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके चेक किया गया, तो वो एक लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड थी. मतलब कि अब फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर भी काफ़ी नहीं रहा था. तो इस तरह फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? इस आर्टिकल से भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया, व्हाई वी नीड इट. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है. तो अब क्या होगा, पहले वो सिनेरियो चेक करते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या चेंजिंग आएगी. इज इट क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट अप्लाइड. जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, स्पेक्ट्रम वाज शोइंग वन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन. तो उस वक्त क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से ना हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आ रहा था ना, तो एक ही लाइन दे रहा था. क्यों दे रहा था वो मैं आपको डायग्राम से शो करवाऊंगा, क्यों वो एक ही लाइन दे रहा था. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. सो एजिमुथल क्वांटम नंबर वाज जस्ट डीलिंग विद वन लाइन, बट देन वी नीडेड अनदर. इस पॉइंट को ना भी छोड़े, नेक्स्ट चलते हैं, फिर मैं इस पे आता हूं. ये डायग्राम अभी देखें आप. अब आपकी ना इसी टॉपिक में, इसी आर्टिकल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाले में अल्कली मेटल्स की बात डिस्कस की है, सोडियम की. उसमें क्या होता है, वैलेंस शेल में ना 3s में इलेक्ट्रॉन होता है. वो कहता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ आता है, यानी p ऑर्बिटल की आप बात कर लें बेशक, ये मैंने डायग्राम बनाई है. 3s से इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल है, 2p मैंने दिखाया ये रेड लाइन से, और ये जो है पर्पल, ये मैंने उसको ऑर्बिटल बनाया है, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. ये बात समझ में आती है? अब आप सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन इधर से आता है 2p ऑर्बिटल में. 2p ऑर्बिट के क्या आगे ऑर्बिटल्स हैं 3. अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे 2pz में आए, चाहे 2py में आए, या 2px में आए, ये कहता है कि एक ही लाइन देता है, सेम एनर्जी रिलीज कर रहा है.
तो उसी एनर्जी रिलीज को जब हम स्पेक्ट्रम पे लेते हैं तो हमारे पास वन लाइन आती है। मतलब इससे क्या शो होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ आता है तो सेम एनर्जी शो कर रहा है। ये बताता है कि ये जो 2pg 2py और 2px है इनकी एनर्जी सेम है। अगर एनर्जी डिफरेंट होती तो हमारे पास स्पेक्ट्रम डिफरेंट लाइंस आती, एक से ज्यादा लाइंस आती, लेकिन हमारे पास एक ही लाइन आ रही थी। क्लियर है? अब इधर इस पॉइंट पर आते हैं। सो एजीमुथल वाज जस्ट डीलिंग विद वन लाइन बट देन वी नीडेड अनदर। अगर बात इधर तक रहती ना, मतलब एक लाइन आ रही थी हमारे पास, इधर तक बात रहती तो फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर काफी था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो क्यों, ये हम आगे कंडीशन चेक करेंगे, उधर से हमें पता चलेगा कि क्यों एजीमुथल ही इनफ नहीं था डिस्कस करने के लिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया कि जब ये आएगा 2p ऑर्बिटल्स में तो ये एनर्जी रिलीज करेगा सेम, और उस सेम एनर्जी को जब स्पेक्ट्रम पर लेना तो हमारे पास एक ही लाइन आती है। तो अगर एक ही लाइन आ रही थी तब तक तो हमारे पास एजीमुथल काफी था, लेकिन एक लाइन नहीं आती। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस थी, तो इसलिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर है? ये हम आगे डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे उसको। अब आगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन, वो भी हम इसी डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, लेकिन इधर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड का मतलब होता है कंडीशन, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो फिर जो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी रखेंगे उनको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिस तरह इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रॉन जो 3s से हाई एनर्जी ऑर्बिटल से आ रहा था वो सेम एनर्जी रिलीज कर रहा था। मतलब ये बताता है कि 2pg 2py और 2px की एनर्जी सेम है। क्लियर है? तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं अप्लाई हुआ, तो मतलब दोनों चीजें क्या है, फुलफिल हो रही हैं। तो ये क्या है? 2pg 2py और 2px क्या है? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कंडीशन आपने याद रखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगा तो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हो सकते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है, तो वो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। क्यों होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सो अब आते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम थोड़ा पिछले से थोड़ा रिवाइज कर लें क्या हम डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ आ रहा था ना, जो आ रहा था वो एक ही लाइन दे रहा था हमें। मतलब वो ये शो कर रहा था कि तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ये पॉइंट जेल में रखना है। अब हम फिर कहते हैं कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या चेंजिंग आती है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, when Bohr model was placed in magnetic field, then spectrum was further divided into many other lines. कहता है कि फिर हमने उस स्ट्रक्चर को जब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया, उसमें रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वही एक लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को कहते हैं हम जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करें तो एक जो लाइन आपके पास पहले मिल रही थी वो फर्दर लाइंस में डिवाइड हो जाए, तो उसे कहते हैं जीमान इफेक्ट। इसको ना मैं एक इंटरेस्टिंग डायग्राम से आपको मैं शो करवाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से कैसे एक लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड होगी, कैसे वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो एक से ज्यादा एनर्जी या एक से ज्यादा लाइंस क्यों शो कर रहा था। इससे पहले ना एक डायग्राम पे चलते हैं। यह डायग्राम, अब इससे पहले ना दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इधर जो एयर है ना, जो हवा चलती है, आंधी चलती है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर अज्यूम करना है। क्लियर है? और ये जो बाल है ना, इसको आपने सपोज करना है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में है ये। ठीक है, और इसको मैंने इस ऑर्बिटल में फेंकना है, बाउंड्री वाले ऑर्बिट में। ठीक है, जो कि आप सपोज कर लें कि लो एनर्जी ऑर्बिटल है। क्लियर है ये? और ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी हम डिस्कस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, फिर हम प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको।
अभी आप सपोज करें कि नॉर्मल कंडीशन है, एयर ज्यादा नहीं है, हर तरफ क्या है, नॉर्मल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो बॉलर ने बॉल करवाई, बैट्समैन जिधर शॉट मारना चाहेगा उधर जाएगी, सेम एनर्जी के साथ वो मतलब बाउंड्री मार सकता है। क्लियर है? मतलब हमारे पास सेम एनर्जी, मैं कह रहा हूं वर्ड, सेम एनर्जी के साथ शॉट मार सकता है, फ्रंट पे, बैक पे, जैसे भी। तो हमारे पास एक लाइन आएगी अगर मैं उसी मतलब सेम एनर्जी की स्पेक्ट्रम हासिल करूं। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक लाइन आ रही है। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सपोज करें कि जिस तरह आंधी चलती है या आप खेल रहे हो तो हवा बहुत तेज चल पड़ती है। अब आप सपोज करें हवा जो है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है इधर। क्लियर है? ये है 2px, ये 2py और ये 2pz मैंने बनाया है जस्ट डायरेक्शन के तौर पे। ठीक है, अब बाल ना इधर पड़ी है, अब हवा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस तरफ। अब आपको पता है जब हवा जिस तरफ चलती है ना तो उस तरफ शॉट मारना आसान होता है। अगर बैट्समैन चाहे कि 2px की तरफ शॉट मारे, इसकी तरफ मारे, इधर मारे, तो मतलब क्या है, एनर्जी कम लगेगी क्योंकि हवा की डायरेक्शन भी उस तरफ है। या इसको आप ऐसे समझ लें, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन उस तरफ है और आप इलेक्ट्रॉन को भी उस तरफ फेंकना चाह रहे हैं, तो एनर्जी क्या है, कम रिलीज होगी, कम एनर्जी लगेगी। अब इसके हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हवा इस तरफ है, बैट्समैन चाहे कि मैं फ्रंट पे शॉट मारूं तो उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मतलब एक और लाइन आती है इस तरह। अब अगर बैट्समैन चाहे कि मैं इस एयर के इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट शॉट मारूं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक लाइन इधर से आएगी कम एनर्जी वाली, एक सामने वाली आएगी थोड़ी ज्यादा एनर्जी, और एक आएगी इधर से 2pg वाली जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो इस तरह हमारे पास जब मैग्नेट फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 लाइन आती हैं। अच्छा, इसको एक और डायरेक्शन से समझते हैं। अभी हमने अप्लाई किया था वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अब आप अप्लाई करें ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन को 2pz की तरफ फेंकना आसान है, एनर्जी कम रिलीज होगी। 2py में फेंकना थोड़ा उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके अपोजिट फेंकना 2px में तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह मतलब जब भी आप किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक लाइन थोड़ी हल्की होगी, एक थोड़ी डार्क होगी, एक सबसे ज्यादा डार्क होगी। तो 3 लाइंस आपको मिलेंगी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि किस तरह आपके पास एक लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड हो रही थी। अगर कोई एयर ना हो तो सेम एनर्जी है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सेम एनर्जी है। फिर है अगर आप अपोजिट जाए मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को आप अपोजिट ही प्लेस करवाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और अगर आप क्या है उसके इफ अपोजिट, इधर है लेस एनर्जी इफ इन द डायरेक्शन, इधर अपोजिट लिखा है, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन प्लेस करवाना चाहिए ऑर्बिटल में तो आपके पास लो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह आपके पास स्पेक्ट्रम में 3 लाइंस आ सकती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, कैसे फर्दर लाइन में डिवाइड होती है मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से। नेक्स्ट चलते हैं। सो देन थर्ड क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस। तो इस तरह जब एक लाइन फर्दर लाइंस में डिवाइड हुई तो हमारे पास एक चांस बना के क्राइसिस आ गया कि अब हमें कोई थर्ड क्वांटम नंबर की जरूरत है। तो इस तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डायग्राम है, पहले मैंने वो ग्राउंड वाली डायग्राम से शो करा, अब मैं उसको मतलब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से आपको शो कराता हूँ कि किस तरह 3 जो है लाइंस आपके पास आई एक लाइन की बजाय। अब ये 3s इलेक्ट्रॉन, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो आपके पास सेम एनर्जी रिलीज हो रही थी, एक ही लाइन बन रही थी ये वाली। अब आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग प्लेस किया हुआ है, x के अलोंग मतलब अप्लाई किया हुआ है, और आप इलेक्ट्रॉन को भी x में प्लेस कराना चाहते हैं तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो आप सपोज करें ये थोड़ी लाइट सी एक लाइन आती है, फिर अगर x में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आप y में प्लेस करना चाहते तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आपके पास ये सपोज करें थोड़ी डार्क लाइन है, फिर आप अगर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब x के अपोजिट प्लेस करवाना चाहते हैं तो फिर आपके पास सबसे ज्यादा डार्क लाइन आएगी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक लाइन फर्दर 3 लाइंस में डिवाइड हो जाती है p ऑर्बिट के केस में। क्लियर है? सो वी केम टू नो दैट देयर आर 3 ओरिएंटेशंस इन p ऑर्बिटस। तो हमें फिर क्या पता चला कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये हमें बताती हैं कि एक ऑर्बिटल कितनी ओरिएंटेशन में, कितनी डायरेक्शन में
स्टेबलाइज हो सकता है, कितनी डायरेक्शन में मतलब अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चल सकता है कि किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इधर तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, ये एक था कंसेप्ट बनाने के लिए, मतलब आपको बैकड्रॉप पता चले, आपको पस मंजर पता चले इसके पीछे क्या हो रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, वो मैंने आपसे डिस्कस करने की ट्राई की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, मेन आर्टिकल की तरफ, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब आपको बहुत इजीली समझ आएगा ये टॉपिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद एम, इसको स्मॉल एम से शो किया जाता है। इट्स वैल्यू रेंज, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये इसकी वैल्यू ना एल की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस तरह डिपेंड कर रही है वो हम आगे फार्मूले से भी डिस्कस करें, कैसे ये डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के। क्लियर है? अब नेक्स्ट होते हैं, अच्छा इधर ही किस तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करिए, ये भी आप समझ लें कि अगर आपके पास L0 है तो आपके पास S सब शेल होगा, अगर आपके पास 1 है L तो आपके पास P ऑर्बिटल होगा। फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन आएगी वो बताएगी कि P ऑर्बिटल्स के कितने सब शेल हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह ये डिपेंडेंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर के। टोटल वैल्यू ऑफ m इज डिटरमाइंड बाय 2l+1। इधर आप L की वैल्यू पुट करें, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी M की, मतलब कितनी उसके ऑर्बिटल्स है, कितनी लाइंस बनती हैं जब आप उसका एमिशन स्पेक्ट्रम हासिल करें। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें, इधर से भी हमें पता चलता है किस तरह वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के डिपेंडेंट है। अगर L0 हो तो आप जानते हैं S सब शेल, 1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F। अब जब आप L0 होगा तो आप इधर पुट करें L0, तो आपके पास M जो है 1 आ रहता है, तो 1 एक वैल्यू आएगी, वो एक वैल्यू ये आएगी। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास इधर 3 आंसर आएगा, तो मतलब 0 +1 -1 ये वैल्यू आएंगी। इस तरह जब आप 2 पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू आएंगी 5। जब आप F पुट करें 3 पुट करेंगे तो आपके पास 7 वैल्यूज आएंगी। तो ये आप देख रहे हैं जितनी लाइंस है ना, ये हमें बता रही है कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है किसी ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिट में। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। इस आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा कि S क्यों 0 शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और P कैसे 0 +1 -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है वैल्यू। डायरेक्शन स्पेस बाय गेटिंग नंबर ऑफ लाइंस, वैल्यू ऑफ M tells us that in how many ways an orbital can be arranged along x, y and z direction। तो ये हमें बताता है M की वैल्यू किस तरह कोई ऑर्बिटल x, y और z के अलॉन्ग डायरेक्ट कर सकता है, मतलब डायरेक्शन हो सकती है उसकी, जिस तरह हमने वो ग्राउंड वाली एग्जांपल ली है। क्लियर है? और उसके अलावा हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वाली एग्जांपल से भी हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है लाइक वैल्यू ऑफ m फॉर p इज 3, इट शोज दैट p ऑर्बिटल्स कैन बी अरेंज इन 3 वेज, जिसको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है 2 px py pz। असल में p का ऑर्बिटल था, डिजेनरेट था पहले, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस वो क्या है डायरेक्ट हो सकता था। तो इस तरह हमें पता चला कि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। किससे पता चला? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। These will be degenerate only in the absence of magnetic field। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ना डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जब ये अभी इधर आप सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिटल्स में आ रहा था ना, सेम एनर्जी रिलीज कर रहा था। क्लियर? अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो थोड़ी सी रोटेशन होगी, फोर्स लगेगी ना तो वो थोड़ी सी रोटेशन होगी। ये इस तरह रोटेट करेगा, x चला जाएगा z की जगह, z चला जाएगा y की जगह, और y चला जाएगा x की जगह पर। तो ये आपके पास बन जाएगी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो सेंटर है ना वो आता है 0, ऊपर +1 और नीचे आपके पास -1 आता है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास p की 3 वैल्यू +1 0 -1। अब हम डिस्कस करते हैं S केस में कि मैग्नेटिक फील्ड का इस पर क्या असर होता है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर कुछ नहीं होता, कोई इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं क्रिएट होता, क्योंकि S सब शेल जो है ना ये एक स्फेरिकल है। इसकी न्यूक्लियस से तमाम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ना वो सेम है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम रहती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस सबशेल इज 0। ठीक है, तो इसमें 0 होता है। ये है टेबल जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, एल की वैल्यू, उसके बाद सबशेल, फिर एम की वैल्यू कितनी आती हैं, उसकी बेस पर हम कह सकते हैं किसी ऑर्बिटल में मतलब किसी ऑर्बिट के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। जैसे पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 हैं, एफ के 7 हैं। और ये डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद एफ है वो इससे भी कम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये तो इतने कम्प्लेक्स है, लेकिन एफ सबशेल के जो है ना ऑर्बिटल्स वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं उनको ड्रॉ करना, तो इसलिए मैंने उनको शो नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको पता चला है कि डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हमने डिस्कस किया कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंजिंग आती है, कैसे ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होते हैं। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जिसको हमने प्लेग्राउंड के एग्जांपल से भी डिस्कस किया, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने आर्टिकल को डिस्कस किया कि वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, कैसे ये डिपेंडेंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर के, और कैसे पी ऑर्बिटल जो है 3 वैल्यू शो करता है, 0 +1 -1, और क्यों एस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। तो अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। Stay tuned and stay happy and recommend your fellows also. And thank you.